Bismillahirrahmanirrahim. Multan Public School and College for Boys and Girls. This is the lecture for O-Level 10 Chemistry. We are going to start our remaining topic of Chapter 25, that is the macromolecules. I'm Muhammad Saeed Tahir from Multan Public School and College. Chapter 25 consists of macromolecules. We discussed in the previous lecture the polymerization process and polythene, formation of polythene as the example of addition polymers. Today we will discuss condensation polymers. What are the polymers? First, we revise the previous lesson. How can we define the polymers? Polymers are the long chain molecules which are formed by combining the smaller molecules which are known as monomers. In this image, you can see that smaller molecules which are known as monomers, by the process of polymerization, change into long chain polymers. How properties of polymers change? In this diagram, you see different types of different glasses having different transparent materials. These are all different types of polymers formed. They can be changed into one form to another form in different shapes, and these shapes are then used for different purposes. Different types of polymers on the basis of properties. Families of polymers, we can say polymers are of two types, that is thermosetting या thermosets polymers. Number two, thermoplastics. Thermoplastics can be molded into different shapes, and thermosetting plastics cannot be molded by heat are changed into different shapes. Thermoplastics may be semi-crystalline or amorphous. Semi-crystalline mean having just like liquid materials can be poured from one form to another form, one place to another place, one part to another part, while amorphous, just like powdered form, or just having no crystalline form. So this diagram just says about the polymers and its types. There are two types of polymers in the world, natural polymers and synthetic polymers. आप ऊपर देख सकते हैं कि हमारे पास नेचुरल पॉलीमर्स हैं, और नेचुरल पॉलीमर्स में शामिल हैं स्टार्च, रबर, सेलुलोज, chitin, protein, lipids. These are natural polymers. On the other hand, we have synthetic polymers. जो natural polymers हैं, they are usually can bend and we can stretch. ये bend कर सकते हैं, stretch भी हो सकते हैं, और while जो हम सिंथेटिक पॉलीमर्स बनाते हैं, दे मे बी टफ एंड हार्ड. तो एग्जांपल्स आर रेयन, पीवीसी. इन द सेम वे पाइप्स बनते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें. पॉलीथीन है, पॉलीएस्टर्स हैं, एबीएस हैं, सिलिकॉन्स हैं. दीज आर डिफरेंट टाइप्स. पॉलीस्टाइरीन है. So these are the different types of polymers formed. Uses of polymers. Polymers की applications क्या हैं? Polymers can be used as plastics, can be used as हम कह सकते हैं for covering materials, that is the packaging, and so many things which are mentioned in this diagram, like skin cleansing, skin healing, skin therapy,
मिलिट्री प्रोटेक्शन एंड क्लोथिंग में भी इस्तेमाल होते हैं. वी कैन से मिनिमल इंडिपेंडेंस टू एयर, ट्रैपिंग एरिसोल्स, एंटी बायोकेमिकल गैसेस. Then we say nano sensors, thermal sensors, uh, piezoelectric sensors, biochemical sensors, fluorescence chemical sensors. In the same way, we can say polymers, nanofibers. Polymer nanofibers इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं इसकी. माइक्रो नैनो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसिपेशन में यूज़ होते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस शील्ड्स में इस्तेमाल होते हैं, शील्डिंग में इस्तेमाल होते हैं. एंड फोटो वोल्टिक डिवाइसेस में नैनो सोलर सेल्स में इस्तेमाल होते हैं. एलसीडी डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं. हायर एफिशिएंसी कैटलिस्ट कैरियर्स होते हैं. और इफ़ यू वी सी द पॉलीमर नैनो फाइबर्स में हमारे पास है फिल्ट्रेशन मीडिया के तौर पे यूज़ होते हैं. लिक्विड फिल्ट्रेशन, गैस फिल्ट्रेशन, मॉलिक्यूलर फिल्ट्रेशन में भी यूज़ होते हैं. टिश्यू इंजीनियरिंग स्कैफोल्ड्स, मेम्ब्रेन्स बनती हैं फॉर स्किन, ट्यूब्स फॉर ब्लड वेसल्स, 3D स्कैफोल्ड्स फॉर बोन एंड कार्टिलेज रीजनरेशन में भी यूज़ होते हैं. लाइफ साइंस एंड एप्लीकेशंस में ड्रग डिलीवरी कैरियर, हीमोस्टैटिक डिवाइसेस में एंड वाउंड ड्रेसिंग में भी यूज़ होते हैं. दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स which we use in our life to get different types of information. Now we come towards the next slide. That is examples with types. Polymers have different types like natural, synthetic, and synthetic elastomers and synthetic polymers. Natural polymers consist of cellulose derivative, gelatin waxes, proteins, gums, shellac, natural rubber, starch और chitosan, chitosan. Then synthetic elastomers, hydrogen rubber, silicone rubber, nitrile, acrylonitrile, neoprene. And synthetic polymers consist of polyvinyl alcohol, polyvinyl chloride, polyethylene, polypropylene, and polyamide, polyurea epoxy resins. ये भी different types of examples हैं according to the our scheme. Then biodegradable and non-biodegradable. What are biodegradable? Such substances which are decomposed by the help of bacteria and fungi and they change from solid to different states that may be soluble or insoluble. और इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पेरिशेबल होती हैं लाइक वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट हैं, वुड है. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम दैट चेंजेस इनटू अर्थ लाइक मटेरियल, मट्टी की तरह चेंज हो जाते हैं. उन्हें हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल. बट नॉन बायोडिग्रेडेबल आर दो सब्सटेंसेस लाइक रबर है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन बैग्स हैं, प्लास्टिक शॉपर्स हैं, और इस तरह प्लास्टिक के बने हुए जो क्लोथ्स हैं और प्लास्टिक के मटेरियल के शूज़ हैं. ऑल दीज थिंग्स कैन नॉट बी डिग्रेडेड, are not degradable plastics. They don't change into gases or liquids or earth-like materials. They remain on earth or in the bottom of the ocean for millions of centuries. We say that they are non-biodegradable. और ये एक pollution cause करते हैं in water as well in air. दोनों तरफ ये pollution cause करते हैं because some people try to finish them with the help of fire. So they produce a very poisonous and bad smelling, हम कहते हैं fumes में change होते हैं, धुआं बनता है which causes pollution in air.
नो बायोडिग्रेडेबल में पॉलीमर्स कौन कौन से हैं? एग्रोपॉलीमर्स हैं एंड वही से बायोपोलिएस्टर्स हैं। ये बायोडिग्रेडेबल हैं विच कैन बी चेंज इनटू आई थिंक फ्रॉम सॉलिड टू अदर स्टेट्स। पॉलीसैकेराइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं एग्रोपॉलीमर्स में, वाल बायो पोलिएस्टर्स में क्या क्या शामिल है? इसमें ईस्टर ग्रुप होता है एंड देयर एग्जांपल्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरी है सिंथेटिक हैं। ये भी बायोपोलिएस्टर्स हैं। तो इनकी नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हैं कि इनमें एक पेप्टाइड लिंकेज होता है प्रोटीन में और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है पॉलीसैकेराइड्स में, और इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो सिंथेटिक हैं इनके साथ जो सिंथेटिक का लफ्ज़ है, नेचुरल मोनोमर्स होते हैं या सिंथेटिक मोनोमर्स होते हैं। तो ये भी एक टाइप है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सारे के सारे इसमें आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। For the next, we will discuss condensation polymers. Those polymers which are formed by combination of monomers with the elimination of small molecules like water or alcohol. The monomers in these types of condensation reactions are bifunctional groups or trifunctional in nature. Example, hexamethyl diamine and adipic acid polymerize to give nylon 6,6, where molecules of water are eliminated in this process. This is the example of the structure of the polythene. Terylene. Terylene is formed by two types of monomers. One monomer is dicarboxylic acid, and the other is diol. Diol has OH group on both sides, while dicarboxylic acids have a carboxylic acid group on the both sides of the compound. When they unite together, you can see here that carboxylic acid group में जो OH होता है वो अपना H एटम देता है, और जो डाईओल में OH ग्रुप होता है वो अपना OH ग्रुप देता है। एज ए रिजल्ट ये H और OH मिलके H2O बनाते हैं विच इज़ एलिमिनेटेड, और दरमियान में जो लिंक बनता है C डबल बॉन्ड O CH2, तो ये C डबल बॉन्ड O के बाद कार्बन आ जाता है, इसको एस्टर लिंकेज कहते हैं। हम ये जो दरमियान में कार्बन एटम्स हैं, क्योंकि ये टोटल 6 कार्बन एटम्स हैं, वी कैन चेंज इनटू स्मॉलर बॉक्सेस ताकि इजी हो जाए हमारे लिए समझना। ये पॉलिएस्टर है टेरिलीन, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें इट बिकम्स वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड। डाई एसिड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, दरमियान में बॉक्स है और इसका कलर हमने डिफरेंट किया है बिकॉज दिस मॉलिक्यूल में बी आइडेंटिफाइड इन द नेक्स्ट प्रोसेस। प्लस डाईओल में दरमियान में एक बॉक्स है और दोनों तरफ OH है। OH को ओल ग्रुप कहते हैं, अल्कोहल ग्रुप है, तो दोनों तरफ चूँकि है इसलिए डाईओल कहते हैं। तो एक का OH और दूसरे का H मिलके H2O मॉलिक्यूल इससे रिलीज हो जाता है, और दरमियान में C डबल बॉन्ड O का ये जो ग्रुप होता है इसको एस्टर लिंकेज कहते हैं, और चूँकि लॉन्ग चेन बनती है इस प्रोसेस में तो वो पोली एस्टर हम कहते हैं टेरिलीन बनती है। तो टेरिलीन इज़ ए पोलीएस्टर, इससे फाइबर भी बनता है और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। नाउ वी कम टुवर्ड्स नायलॉन 6,6 जो हमने पहले भी पढ़ा है। नायलॉन 6 में देयर इज़ ए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हम देखते हैं एक बॉक्स है दरमियान में और दोनों तरफ C डबल बॉन्ड OH है, तो ये एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। व्हेन इट रिएक्ट्स विद NH2 बॉक्स एंड NH2, इसे कहते हैं डाई अमाइन। इनके जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर 6 कार्बन एटम है डाई अमाइन साइड पे, और बॉक्स में 4 कार्बन एटम है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की साइड पे। तो दोनों के अंदर
इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, दोनों तरफ क्या है, दैट इज 6 कार्बन एटम है इन ईच मॉलिक्यूल। तो हम इसलिए इसको लिखते हैं नायलॉन 66। नायलॉन 66 बेसिकली, नायलॉन का जो वर्ड है मैंने पहले भी बताया था, दैट इज हमने हासिल किया है, दो साइंटिस्ट थे, एक न्यूयॉर्क का और दूसरा लंदन का, और दोनों ने मिलके इसका नाम नायलॉन रख दिया। और चूंकि दोनों में 6 कार्बन एटम का कंपाउंड है मोनोमर्स में, तो इसलिए इसको कहते हैं नायलॉन 66। इसके साथ ही आज का होमवर्क आपको दिया जाता है कि इक्वेशंस और फार्मूलाज पॉलीमर्स के जो कि हैं इसमें आपने आपको समझाएं, उसको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। इसके साथ ही अल्लाह आपका हामी नासर हो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड योर डिवोशन इन लर्निंग। इसके बाद ईद आ रही है, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इस मुल्क को कोरोना के हालात से महफूज रखे और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों को महफूज रखे। और मेरी तरफ से आप सबको एडवांस ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।